I am going to write down a passage for getting practice on the whiteboard. Look at. As you know कि इस टाइम हमारे पास टेक्स्ट नहीं है. अगर बुक होती तो फिर मैं आपको उससे करवाती. फिलहाल हम लोग जो है मैंने नेट से एक पैसेज लिया है, तो इस पर हम SQ3R मेथड को अप्लाई करते हुए इसके आंसर देंगे. जी बेटा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज अ लेबल applied to the study of the purpose, process, nature and ideals of education. It can be considered a branch of both philosophy and education. Both philosophy and education. Education can be defined as the teaching and learning of specific skill, and the imparting of knowledge, judgment and wisdom, and is something broader than the social institution of education we often speak of. Many educationists consider it a weak and woolly field too far removed from the practical application of the real world to be useful. But philosophers dating back to Plato and ancient Greece have given the area much thought and emphasis, and there is little doubt that their work has helped shape and practice of education. You students, write down this passage on your notebooks. आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसको लिख लें. नजर आ रहा है सबको? आई एम गोइंग टू रिमूव बेटा, मैं रिमूव करने जा रही हूँ. इसको पढ़ जल्दी से देख लें, लिख लें, और मैं एक दफा पढ़ने लगी हूँ, सुन लें. फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज अ लेबल अप्लाइड टू द स्टडी का वाई. Philosophy of education is a label applied to the study of the purpose, process, nature and ideals of education. It can be considered a branch of both philosophy and education. Education can be defined as the teaching and learning of specific skills and the imparting of knowledge, judgment and wisdom, and is something broader than the social institution of education we often speak of. Many educationists consider it a weak and woolly field too far removed from the practical applications of the real world to be useful. But philosophers dating back to Plato and ancient Greeks
have given the area much thought and emphasis, and there is a little doubt that their work has helped shape and practice of education over the millennia. जी बेटा, ये मैंने पढ़ा। अब आपको थोड़ा सा जो है वो अंदाजा हो चुका होगा। अगर आप इसका जो है सर्वे को देखें, उसमें है कि टाइटल, तो आपको ये पता चल चुका होगा कि ये पैराग्राफ किसके मुतालिक है। अंडरस्टैंड, कीप इन योर माइंड दिस क्वेश्चन, व्हाट्स द टाइटल ऑफ दिस paragraph? What's the title of this passage? This question keep in your mind. I'm going to remove because I am going to write down the next paragraph of this passage. Plato is the earliest important educational thinker. And education is an essential element in the Republic. In it, he advocates some rather extreme methods, removing children from their mothers' care and raising them as wards of the state, and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education, so that they could act as guardian of the city and care for less able. He believed the education should be holistic, including fact, skill, physical discipline, music and art. Plato believed that talent and intelligence is not distributed genetically, and thus is be found in children born to all classes. Although his proposed system of selective public education for an educated minority of the population does not really follow our democratic model. ओके बेटा, ये काफ़ी लंबा है, लेकिन हम लोग जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने इसमें से टू जो है इस पैसेज से 2 पैराग्राफ जो है सिलेक्ट किए हैं। अब इसको ज़रा गौर से देखें और पढ़ लें। Plato is the earlier important educational thinker, and education is an essential element in the Republic. In it, he advocates some rather extreme methods, removing children from their mother's care and raising them as wards of the state, and differentiating children suitable of various castes, the highest receiving and most education, so that they could act as guardian of the city and the care for less able. He believed the education should be holistic, including fact, skills and physical discipline, music and art. Plato believed that talent and intelligence
is not distributed generally and thus is be found in children born to all classes. Although his purpose system of selective public education for an educated minority of the population does not really follow our democratic model. जी स्टूडेंट्स, इसको रीड आउट करें. Have you studied it? अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इसको आपने स्टडी कैसे करना है. अगर आपके पास कोई टेक्स्ट पड़ी है अपने पास, अभी तो फिलहाल ये है, उसके बाद आप इस तरह करें कि कोई टेक्स्ट या आर्टिकल ले लें या कोई टेक्स्ट बुक ले लें, अपने पास रखें. और जो मैं आपको जो है इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड्स के जो सम मेथड्स जो हैं वो बताने जा रही हूँ, तो उसको अप्लाई करते हुए आप लोगों ने अपनी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी है. Your eyes move across the page, they make a series of jerk. आईज जो है वो मूव कर रही हैं, तो उसको फौरन जर्क दे के उसको जल्दी से लें अपनी वन साइड पे. यानी कि जब आप एक दफा देख रहे हो तो उसी में 2 से 3 वर्ड्स जो हैं ग्रुप में बोलें. फोकस एक वर्ड पे नहीं करना. आपकी आइज जब भी पढ़े तो वो 2 से 3 वर्ड्स को अपने जो है वो आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट ले आए. फिर आपने थोड़ा सा उसको जो है वर्ड्स की स्कैनिंग शुरू करनी है. मैं आपको पता है कि SQ3R में जो है वो टाइटल के बाद स्कैनिंग करते हुए आप जो है वो सर्वे करते हैं, फिर क्वेश्चंस राइट करते हैं जो अराइज हो रहे होते हैं आपके माइंड में, जो आपने ऑलरेडी रखे होते हैं उस पैसेज के मुतालिक. फिर रीड करते हैं, रिसाइट करते हैं और रिव्यू होता है. ऐसा ही है ना? तो इसमें जो आपने पहले स्कीमिंग और स्कैनिंग करनी है वो इसी तरह है कि आपने उसमें से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ले लेनी है और स्पेसिफिक वर्ड्स को स्कैन करते हुए अपने माइंड में रखना है. अगर कोई वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि वो डिफिकल्ट है या सेम है तो आपको पता हो कि फला लाइन में फला था और आपकी स्पीड इस तरह से जो है रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी. ठीक है बेटा? उसके बाद जो है आपने इस तरह करना है. और अगर इस तरह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके होंठ हिल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को स्टॉप करें. आप जो है जस्ट आप अपने होंठों से नहीं बल्कि अपनी ग्लैंस से, अपनी नजर से स्टडी करें. और रीड मोर 15 मिनट्स अ डे ऑफ रीडिंग एन एवरेज साइज नॉवल इक्वल 18 बुक्स ऑफ ईयर्स एंड एवरेज रीडिंग स्पीड. कोई ना कोई नॉवल उठा लें, उसको स्टडी करना शुरू कर दें, उसको रीड करना शुरू कर दें. तो ये है कि आप जो जब ड्यूरिंग रीडिंग जो है जो मटेरियल आप लोगों ने अपने जहन में रखा और फिर आप जो है वो SQ3R को अप्लाई कर सकते हो. ठीक है? अब हम लोगों ने यानी कि इसको थोड़ा सा स्कीमिंग और स्कैनिंग से देखते हैं, फिर इसका टाइटल देखते हैं, फिर इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं यानी सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो है सपोर्टिंग आइडियाज, और फिर इसको सॉल्व करते हैं. जी पहले ये है बेटा कि मैं थोड़ा सा साइड में होने लगी हूँ क्योंकि सामने मेरे है वो मैं रिमूव यहां से कर चुकी हूँ. आप लोगों के पास ऑलरेडी मटेरियल है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसकी जो है स्किमिंग की
और हमें पता चल गया कि ये एजुकेशन के मुतालिक है और इसमें जो है वो प्लेटो का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसकी बुक है रिपब्लिक, उसका कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने स्कैन इसमें किया कि बुक है इसकी रिपब्लिक, तो उसमें इसने जो था वो चिल्ड्रन की एजुकेशन के बारे में जो है वो लिखा है। और इसके अलावा जो है इसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो पॉलिटिकल थ्योरी है और फिलॉसफी है, तो इसका ताल्लुक फिलॉसफी से भी है। ये हम लोगों ने जस्ट स्कीमिंग और स्कैनिंग में लिया। अब हम इसका सर्वे करते हैं, क्योंकि मैंने आपके सिर्फ जस्ट 2 पैराग्राफ लिए हैं एक पैसेज में से। ये पैसेज काफी लॉन्ग था लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख नहीं पा रहे। जब इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस होंगी तो मैं इनकी आपको जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगी, ताकि आपको जो है वो आंसर क्वेश्चंस निकालने में या कॉन्सेप्ट जो है अपना बनाने में या समरी क्रिएट करने में इजी आप फील करें। तो बेटा अब हम इसका सर्वे करते हैं। तो इसमें पहले तो हम लोग देखते हैं टाइटल। व्हाट्स द टाइटल? द टाइटल ऑफ दिस passage is education, because all the passage revolved around the education concept। ठीक है, तो ये है philosophy of education, इसका ये हमारे जहन में आ गया। What's the title of philosophy of education? अब सेकंड ये सर्वे में कि क्या ये जो हम लोगों ने टाइटल लिया तो क्या सब टाइटल और जो इसके ये सेंटेंस हमने लिया तो क्या इसके सपोर्टिंग सेंटेंस, सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, क्या इनमें वही जो है वो टॉपिक है, क्या वो उस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने इसका टाइटल सिलेक्ट किया है? बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको पढ़े। मैंने इसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ लिखवाए हैं। तो 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो शो कर रहे हैं दीज पैराग्राफ्स आर बेस्ड ऑन एजुकेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सर्वे जो है वो कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखना है क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड ड्यूरिंग रीडिंग? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। चलें राइट डाउन करें क्वेश्चन, मैं लिखवा रही हूं आपको। व्हाट्स द टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड जो हमारे व्हाट्स द पर्पस? टू इंफॉर्म द पीपल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ philosophy of education. Why are you reading this paragraph? We want to get information about the educationist, what they have views about education, the philosopher, what's the concept of philosopher about education, on which things they are getting emphasis, and what's the concept of Plato about education and what method he had adopted for children education। तो ये बेटा क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आए इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए, तो ये हमने अब जहन में रखते हुए इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये हमारा रीड यानी सर्वे हमारा हो गया, क्यू क्वेश्चंस भी हो गए जो हमारे जहन में अराइज हुए। अब हमने इसको रीड करना है और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है हमारे जहन में आ जाएगा। Philosophy of education is a label applied to the study of the purpose, process, nature and ideals of education. It can be considered a branch of both philosophy and education. Education can be defined as a teaching and learning of the specific skill and imparting of education
judgment and wisdom, and something broader than the social institution of education we often speak of. Many educationists consider it a weak and woolly field too far removed from the practical applications of the real world to be useful, but philosophers dating back to Plato and the ancient Greeks have given the area much thought and emphasis, and there is little doubt but their work has helped shape the practice of education over the millennia. Plato is the earliest important educational thinker, and education is an essential element in the Republic. In it, he advocates some rather extreme methods, removing children from the mother's care and raising them wards of the state, and differentiating children suitable to the various castes, the highest receiving the most education so that they could act as guardian of the city and care for the less able. He believed that education should be holistic, including fact, skills, physical, discipline, music and art. Plato believed that talent and intelligence is not distributed genetically and thus is be found in children born to all classes. Although his purposed system of selective public education for the educated minority of the population does not really follow a democratic model. This is a step of रीड 1. ये हमने रीड 1 का स्टेप कर लिया, ठीक है. अब रीड 2. R2 में क्या है, सॉरी R2 यानी कि R1 जो है वो रीडिंग का था, रीड हमने कर लिया. R2 जो है रिसाइट, तो रिसाइट रिकॉल करें इसको. जी बेटा इसको रिकॉल करें. जी बेटा इसको अब रिसाइट करें. रिसाइट में जो है आप अपना रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कि आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या समझ में आया. तो इसमें देखें आप. नाउ बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट रिसाइट. नाउ आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट दिस पैसेज, paragraph. What you have find from this paragraph, what you have read and what you have summarized in your own words in your mind. ठीक है बेटा. फिर इसको अंडरलाइन करें, मेन पॉइंट्स को अपने जहन में जो है वो लाएं और इसको अंडरलाइन करें. फिर इसको देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो उसने व्यूज दिए हैं उनको अंडरलाइन करें. दिस इज द वे ऑफ रिसाइटिंग. हो गया आपका. नाउ रिकॉल इट व्हाट यू हैव रेड. अब क्या आपने पढ़ा इसमें? एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है. सेकेंड, प्लेटोस कॉन्सेप्ट. थर्ड, definition of education. Fourth, Plato's book Republic and Plato's concept, Plato's method. तो ये चीजें आपने रिकॉल करनी, ठीक है. अब रिव्यू में क्या होगा? अब जो क्वेश्चंस आपके माइंड में है, जो आपने हाईलाइट किया है, तो इसको जो है आपने रिसाइटेशन से जो है इसमें जो चीजें निकाल ली हैं, तो इसको जो है वो देखें कि क्या ये आपने इस पैरा में से वो बटर निकाल लिया है, जो इम्पोर्टेंट चीजें थी क्या वो आपने इसमें से ले ली हैं. तो और जो आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्या उनके आंसर उसमें हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस थे, क्या वो उसको जो है कवर अप कर रहे हैं. दिस इज द वे ऑफ रिव्यू.
ये तो बेटा इसका SQ3R यानी कि आपका सर्वे सर्वे क्वेश्चन 3R जो था वो आपने इसमें किया, सर्वे भी किया, क्वेश्चंस भी किए, रीड भी किया, रिसाइट भी किया और रिव्यू भी किया। दिस इज द टेक्निक ऑफ रीडिंग। थैंक यू वेरी मच बेटा। इंशाल्लाह कमिंग में हम लोग अगला जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।